మా స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్ కు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించింది. నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. చదువులో, తెలివితేటల్లో, ఆలోచన విధానంలో, నాయకత్వ లక్షణాల్లో వారు ఏ రంగంలో ముందున్నారో గుర్తించి విజేతలుగా నిలపడమే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ ప్రత్యేకత. పాలకొల్లు పట్టణంలో ఉన్నత విద్యతో పాటు భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ అవుతున్న వారిలో అత్యధికులు ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ విద్యార్థులే. ఇలా అన్ని ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇక నుండి ఏ పిఆర్ఓ చెప్పినా వినను. ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ లోనే చదివిస్తాను. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత. అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి. మాంటిసోరీస్ విద్యా సంస్థలు ఉల్లంపర్రు. ఫోన్ 222206. బ్రాంచెస్ రామారావుపేట. ఫోన్ 224200. కొడిగట్టు. ఫోన్ 228800. Hi children, this is Usha and today I am going to say 10th class second lesson Eidgah. ये कहानी पाठ है. इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कहानी लेखन के बारे में बताना. कहानी विधा और उसकी भाषा शैली, किस प्रकार कहानी लिखना है, कहानी लेखन के बारे में बच्चों को परिचित कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. उसके साथ साथ त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे सहनशील गुणों के बारे में भी परिचित कराता है. त्याग यानी सैक्रिफाइस, सद्भाव गुड हैबिट्स, विवेक the thinking power, all these qualities, sensitive matters to make you understand about these sensitive matters also it was being taken importance. बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा आदर. बड़े बुजुर्गों यानी elders, to respect them, किस प्रकार उनका आदर करना है, how to respect them, how to take care of them. About this topic it was being said in this lesson. Means mainly importance of this lesson is to know you understand the importance of the story, how to write the story, and also to inform the good qualities which a child should have, and how to respect the elders. About this story takes place. और उसका विषय होता है और कहानी. ये कहानी पाठ है. कहानी शब्द बना है कह धातु और आनी प्रत्यय जोड़ने से कहानी. कह का अर्थ है कहना. किसी बात या विषय को लेकर एक सुंदर रूप या सुंदर ढंग से लिखने वाले लेखन को कहानी कहा जाता है. किसी घटना को लेकर या किसी विषय को लेकर. इस पाठ में दादी पोते के मार्मिक प्रेम और सद्भाव और वात्सल्य के बारे में बताया गया है. मीन्स दिस वर्ड कहानी कह प्लस आनी से बनाया, इट वाज फॉर्म्ड and mainly an importance it will be taken a simple matter or a simple word it will be taken. एक विषय को, एक घटना को, by taking an incident and they will form the story, how to form the story. And in this story it was said about the importance of the grandmother and the grandson, what will be their affection between them. About that mainly the topic goes on in this story. अब लेखक के बारे में. इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद. ये कहानी पाठ है और ये लेखक का नाम है प्रेमचंद और उनका बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव. The childhood he was called as धनपत राय श्रीवास्तव, his full name. और उनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 में हुआ था. और इनका जन्म एक गरीब घराने में हुआ और काशी में उनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में. वह बहुत ही गरीब घराने में उनका जन्म हुआ था और वे ट्यूशन पढ़ाते हुए वे मैट्रिक पास किया था. वे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक पास किया और नौकरी करते हुए उन्होंने बीए को पढ़ा है. एक दर्जन उपन्यास उन्होंने लिखा है और 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखा है. मानसरोवर जो भी कहानियां या उपन्यास उन्होंने लिखा है उन सबको मानसरोवर नामक किताब में रखा है. वे 8 खंडों का है. उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, उनका उपनाम है ये उपन्यास सम्राट, क्योंकि उपन्यास लिखने में बहुत बड़ा ही कवि है और ये उनका मुख्य उपन्यास है
प्रतिज्ञा, रंगभूमि, इस प्रकार की उपन्यास उन्होंने लिखा है। और उन्होंने बहुत सारे 300 से अधिक कहानियां लिखा है। उनमें कुछ कहानियां हैं पंच परमेश्वर और बड़े घर की या कफन। Means his full name is Premchand and his childhood name is Dhanpat Rai Srivatsav, and he was born in 31st July 1880, and he was born in a very poor family in Kashi, and he used to say the tuitions and he had completed his metric examination, and at the same way he had done the work. He has written nearly 8 dozen, it means 12 upanyas, and more than 300 stories he had written. And he was given a name Upanyas Samrat because he writes Upanyas very great. No other poet is there such a like Premchand who gives importance for the Upanyas. Same way, a very great stories he had written with taking a sensitive matters which will happen in a human being. So he was a very great poet who writes the stories, great stories and Upanyas. And he was called as Premchand, and in this story, Eidgah, he wants to say the importance of the grandmother and the grandson, how much sensitive they will be, what their feeling will be, that he wants to say in this Eidgah lesson. Eidgah पाठ में मुख्य विषय है नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्यों हमारे भारतीयों का मुख्य गुण है कि नैतिक गुणों को अधिक महत्व देते हुए जीते हैं। उसी नैतिक मूल्यों को लेकर हम बड़े बुजुर्गों को किस प्रकार उनका आदर करना, उनका सेवा करना, इसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। और रमजान कहानी के ओर जाते समय कहानी इस प्रकार है, ईदगाह की कहानी इस प्रकार है कि रमजान का दिन है। रमजान के 30 दिनों के बाद, रोजा रखने के बाद ईद आता है। ईद के दिन बहुत ही मनोहर और सुहावना है। सब ओर हरियाली दिखाई पड़ता है, सब ओर सुहाना दिखाई पड़ता है। तैयारी कर रहे थे। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 30 days fasting, Eid festival will come, and the Eid festival is nothing but Ramzan. So everywhere, wherever they see, it is very pleasant, the climate is very pleasant, the children are very happy, everyone are being ready to go for the, they are getting ready to go for the masjid. ईदगाह यानी मस्जिद, ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों के लड़के बहुत प्रसन्न है क्योंकि वे अपने जेब से कुछ पैसे बाहर निकालते थे और उसे गिनते थे कितने पैसे हैं, इस प्रकार 1 2 3 इस प्रकार गिनते थे और जेब में रखते थे। सब बच्चे अपने अपने पैसे को देखकर इस प्रकार सोचते थे कि खिलौने खरीदेंगे, हम मिठाइयाँ खरीदेंगे या गेंद खरीदेंगे। मोहसिन के पास 11 पैसे है या 15 पैसे है, इस प्रकार बच्चे अपने पैसों को देखकर बहुत प्रसन्न है। हमारा पाठ का ईदगाह पाठ में मुख्य रूप है हामिद। हामिद बोली सूरत वाला 4-5 साल का छोटा बच्चा है। उनके पास केवल 3 पैसे हैं, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। उनके पिताजी गत वर्ष हैजे के कारण मर चुका है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी माता भी गुजारा गया है।
Hamid, the important character in the story, Hamid, he is not having much amount. His father was passed away before last year, and mother also passed away, and he was being raised with Amina. उनकी दादी का नाम है अमीना. He was being raised with Amina. वह अपनी अमीना के गोद में सोता था. He used to sleep in the lap of Amina, and Amina used to say, अमीना उस बच्चे से ये कहती थी कि उनकी अब्बा जान रुपये कमाने कहीं दूर पर चला गया और उसकी अम्मी जान उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसको बहुत सारे खिलौने लाने के लिए गए हैं. इस प्रकार अमीना उस बच्चे को अपने माता पिता के बारे में बताता है, और ये बच्चा सोचता है कि अपने माता पिता अपने लिए बहुत सारी चीजें लाने के लिए गए हैं. इसीलिए बच्चा बहुत प्रसन्न है. उसके पास जूते तक नहीं है. वह अपने जो भी अपने पास है उसी से वह संतुष्ट है, और बहुत प्रसन्नता से वह रमजान की तैयारियां कर रहा है, ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहा है. He was being raised with the grandmother Amina. She used to say the Hamid that his father has went very far away to bring money for him. Same his mother went to Allah to bring so many toys for him. With that, this boy was very happy, and he was anxiously waiting that their parents will come and give him more things. So he was very happy. He was very poor also. He doesn't have even shoes. But still, with the old topi he is having, but still that boy was very happy. वह ईदगाह जाने के लिए he was getting ready to go for masjid. और अमीना एक कोठरी में बैठकर वह रो रही थी. उनकी दादी अमीना कोठरी में बैठकर रोती थी, क्योंकि सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ हामिद के पास कोई नहीं है, केवल अमीना है. अमीना से ही वह ईदगाह जाना पड़ता है. अमीना इसीलिए अमीना हामिद के साथ नहीं जा सकता है. So here the meaning for that is Amina is crying in the hut that nothing is there. गाना तक नहीं है. It means nothing is there to cook on the festival day. That boy, he is very anxiously waiting for the grandmother to send him for the हामिद दादी को धैर्य दिलाकर वह ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है, और गांव से मेला के रूप में सब लोग एक झुंड के रूप में ईदगाह जाने के लिए, ईदगाह शहर में है, शहर जाने के लिए तैयारी हो रही है. और शहर की दामन आने के बाद वहाँ की सड़कों के दोनों ओर इमारतें हैं, बड़े बड़े कॉलेज है, और वहाँ पर क्लब है और स्कूल भी है. इन सबको देखते देखते वे ईदगाह की ओर जाने लगे. ईदगाह जाते समय उन्हें कई टोलियां भी दिखाई पड़ा है, और सब लोगों की वस्त्र इस प्रकार भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. त्योहार के दिन है ना, इसीलिए सब लोग भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, और सब लोग ईद की ओर जाना शुरू कर दिया है. Here, all the members in the village, they started going towards the masjid. Masjid was in the town, and the entrance of the town, when they entered into the entrance of the town, they had found many big buildings beside the roads.
many schools, colleges and many things they are seeing beside the roads, and they have started moving in front. So while they are going, they are seeing many groups of people passing towards it. Kai toliya, toliya means a group of people walking together. Kai toliya उस प्रकार जाते थे और all of them wear a very very beautiful dresses because it is a festival day. All of them going towards the masjid. So मस्जिद पास ही है, मस्जिद के पास जाते ही सब लोग मस्जिद के अंदर जाकर नमाज किया है। वहीं पर मस्जिद के पास ही ईद की मेला है। मिस बिसाइड द मस्जिद ओनली देयर वाज ए ईद की मेला है। इट मींस ऑल द शॉप्स दे हैड केप्ट बिसाइड द मस्जिद। बड़ी श्रद्धा से मस्जिद में नमाज करने के बाद सब बच्चे दुकानों पर दावा डाल दिया। दावा बोलना ये मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ है आक्रमण करना। After they had entered into the masjid, very devotionally they had done the prayer there, namaz किया है। After that they had attacked the shops. बच्चे हैं ना, इसीलिए सब बच्चे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए वहां पर जाते हैं। So सब बच्चे दुकानों के पास जाता है तो उस पहला दुकान आता है उनके लिए खिलौने की दुकानें। खिलौने की दुकानें में टॉय शॉप्स। फर्स्ट दे हैड एंटर इनटू द खिलौने की दुकानें पर जाते ही सब बच्चे अपने अपने मनपसंद खिलौने खरीद लिया है। ये हामिद उसी प्रकार वहाँ एक पास करा है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसा है। वह अपने आप को संभाल देता है। ये मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, गिरे हुआ तो चकनाचूर हो जाएगा। He himself saying that these toys are being prepared with the mud. So if they fall down, they will break and there will be no use of these toys. So he himself says that he himself अपने आप को समझाता है चकनाचूर हो जाएगा। It means they will break and they will become into powder. So इस प्रकार अपने आप को ललचाने पर भी अपने आप को कंट्रोल करता है। दुकान ये खिलौने दुकानों के बाद उन्हें आता है मिठाइयों का दुकान। बच्चे अपने मनपसंद रेवड़िया, गुलाब जामुन, हलवा इस प्रकार अपने मनपसंद मिठाइयों को खरीद कर खाते थे। लेकिन ये हामिद अपने 3 पैसे को उस प्रकार देखता लेकिन वह उस पैसे से उसको नहीं खरीदता है। Miss, after the toy shop, they had entered into the sweet shop. Many of them had buy their own interest sweets and they started eating. But this boy didn't buy anything because he is having only 3 paisa. Buy this revadia क्योंकि it is a very pregnant smell we are getting, so buy this and eat. He says, miss, this boy didn't buy because he is having only 3 paisa. लोहे की दुकान। लोहे की दुकान में कई लोहे की चीजें हैं। उनमें एक उनकी दृष्टि एक चिमटा पर पड़ी है। चिमटा यानी स्पैचुला, यानी उस चिमटा को देखते ही इस बच्चे को अपनी दादी माँ की याद आई, दादी माँ अमीना की याद आई, क्योंकि अमीना जब उन्हें रोटियां बनाती थी उस वक्त उनकी हाथ जल जाती थी। Iron shop. In that iron shop they had find many things, but this boy's concentration was totally on the spatula because he remembered his grandmother when she is preparing when she is preparing food for him, her hands used to
get boiled because she is not having spatula. So this boy wants to buy spatula and give it to his grandmother. इन्हें चिमटा खरीद कर अपनी दादी को देना चाहता था और ये भी सोचता है कि ये बच्चा चिमटा को देखते ही अमीना बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और उन्हें कई दुआइयां देगी। और इस चिमटा को लेकर वो अड़ोस पड़ोस के सब औरतों को दिखाकर ये बताए कि मेरा बच्चा चिमटा लाया है मेरे लिए। Means this boy is thinking that to buy that spatula and give it to his grandmother, and his grandmother will be very happy by seeing this spatula and she blesses her very well. And also he feels that this grandmother will say all the neighbors that his boy has brought her this spatula, very important for me, which is, and how much affection this boy is having towards me. So the elders, I mean the remaining neighbors also will bless me. So ये बच्चा ये सोचता है कि सब लोगों की दुआइयाँ सीधे अल्लाह के घर जाता है, अल्लाह के पास जाता है और अल्लाह हम आशीर्वाद करता है। इस प्रकार ये छोटा बच्चा सोचता है। Means this boy feels that all these blessings will go directly to the God and God blesses him. So you can understand how much sensitively this boy, a small boy, is thinking about that. छह पैसे का शब्द सुनते ही उसका मन गदगद हो गया, है ना, वह डर गया। उसके पास केवल 3 पैसा है। वह उस दुकानदार से पूछता है कि क्या मुझे ये 3 पैसे में मिल सकता है। Means he wants to buy that spatula for the grandmother, and he went to the shopkeeper and he had asked the shopkeeper what is the cost of that. So the shopkeeper said that it is 6 paisa, but this boy is having only 3 paisa, and so he asks the shopkeeper to give that for 3 paisa. So the shopkeeper agrees and give it for the boy, and he had bought that for 3 paisa. वह चिमटा को इस प्रकार अपने कंधे पर, कंधे यानी शोल्डर्स, कंधे पर रखता है कि मानो ये बंदूक को ले रहा है। बहुत गर्व से ये चिमटा खरीदा है, अपने बंदूक को उसके कंधे पर रखकर वो बंदूक को इस प्रकार ले जाता है कि वह किसी घटना किया है। सब बच्चे उसे चिमटा को देखकर उसे हास करता है कि ये चिमटा क्या करेगा, इसका चिमटा से तुम्हारा क्या उपयोग है। Means that boy had bought it and he is handling it on his shoulder just like a gun. Very proudly he is handling it and he is moving from there, and he went to the friends with his friends. Then his friends said that what he will do with this chimta. So that boy said that I will give it to the grandmother. ये चिमटा मैं अपनी दादी के लिए खरीदा है। So सब बच्चे अपने इच्छाएं वस्तुएं खरीद कर सब लोगों ने गांव की ओर, बड़ा शाम होते ही गांव की ओर चला, और गांव की ओर चलते समय उनकी आवाज सुनते ही, गांव तक पहुंचने के बाद उनकी आवाज, हामिद की आवाज सुनते ही अमीना बाहर आकर उसे अपने गोद में ले लिया और उसे प्यार करना शुरू किया। और हामिद के हाथों में चिमटा देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। And by seeing the spatula in his hand, she was very surprised. And उन्होंने अमीना ने हामिद से पूछा ये चिमटा क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। तो हामिद ये जवाब देता है कि मैं ये चिमटा खरीदा है। सो अमीना बहुत गुस्से में आकर वह कहता है कि तुम ये चिमटा क्यों खरीदा, इसका क्या उपयोग है।
तो this boy answers to Amina, his grandmother, that I am finding that your hands are being burned while you are preparing food for me. So this was not able to bear with me, so I had bite this spatula for you. So उनका क्रोध, अमीना क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया और उन दोनों के बीच एक मार्मिक प्रेम सद्भावना के बारे में बताया गया है इस कहानी में। ये सब सुनते ही अमीना का क्रोध, जो भी क्रोध है, वह तुरंत स्नेह में बदल गया और वह सोचती है कि सब बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते समय ये बच्चा चिमटा खरीदा है, उस वक्त कितना ललचाया होगा ये मिठाइयाँ या खिलौने, लेकिन ये बच्चा मेरे बारे में सोचकर, ये ना अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचकर ये चिमटा खरीदा है। इस बच्चे में कितना त्याग है, सद्भाव है, विवेक है। इन मार्मिक विषयों को देखकर अमीना का मन गदगद हो जाता है। गदगद होना या दुखित होना, अधिक दुखित होना, ये मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ है दुखित होना, यानी she feels that when the children are buying the things or the toys or the sweets, this how much attracted maybe they will be, but still he had controlled himself and he had bought spatula for his grandmother for me. So how much is budiya for old woman, he had bought the chimta. इसका दुख का अर्थ है प्रसन्न होना, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं अपने पोते को देखकर। ये बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, ये केवल ये सब सोचता है कि अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है। इस पाठ में एक बड़े लोगों और बुजुर्गों को किस प्रकार की श्रद्धा, उनकी सेवा करना है, उनका किस प्रकार का आदर करना, इन भावों को लेकर इस पाठ को, ईदगाह पाठ को प्रेमचंद ने बहुत ही इस पाठ में अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। Miss had used more and more muhavaras in this lesson, and it was being said about the importance of that boy's qualities, त्याग, सद्भाव और विवेक। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और सब लोगों के आदर की भावना होना है। मुख्य रूप से इस पाठ में ये प्रश्न आने की संभावना है कि लेखक की परिचय कीजिए, प्रेमचंद के बारे में लिखिए। You will be having this question for 4 marks and mostly for 3 marks questions you will be having हामिद क्यों प्रसन्न है, और another question you can get ईदगाह की सारांश लिखिए। मोस्टली इस पाठ में अधिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उस मुहावरा का अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि आपको परीक्षा में ये मुहावरा आने की संभावना है। कुछ मुहावरा को मैं बता रही हूँ। आह भरना यानी ठंडी सांस लेना, मुहावरा का अर्थ है ठंडी सांस लेना। उसी प्रकार दावा बोलना, इसका अर्थ है आक्रमण करना, इट मींस टू अटैक। मन ललचाना मुहावरा का अर्थ है इच्छा करना। दिल कचोटना, इसका अर्थ है, इस मुहावरा का अर्थ है दुखित होना। और दिल बैठ जाना यानी निराशा होना। आपको परीक्षाओं में इस प्रकार की मुहावरा आने की संभावना है। These are the important muhawaras which you can get in the examination. धन्यवाद। ఉల్లంపూర్ మాన్సో స్కూల్లో అటు డిజీ క్లాసులు ఇటు ఐఐటి క్లాసులు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్కూల్ నుండి 10 మంది డాక్టర్లు, 8 మంది చార్టర్డ్ అకౌంట్లు, అనేక మంది ఐఐటి ఎన్ఐటిలో చదివిన ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ విద్యా సంస్థల్లో 10 రకాల కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లోని విజయకేతలు ఎగరేశారు. 4 స్టేట్ ఫస్ట్లు, 40 టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు 13 మంది గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఒత్తిడి లేని విద్యను అందిస్తూ
అటు జాతీయ స్థాయి స్పోర్ట్స్ ర్యాంకులతో పాటు ఇటు ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ ఉల్లంపూర్ మాంటిసోరీ స్కూల్.